Okay, today we are going to solve the problem number 4, okay, in sheet number 8. Okay, the same mistake in this problem also. Okay, actually in figure, uh, top view and front view is given. Okay, elevation and plan. Elevation means front view and plan means top view. Okay, so here by using the third angle projection method, okay, its front view and top view is given. Okay, so from this two view we are going to draw the isometric view for this object. Okay, but before that let's quickly revise the important method that we learned in last lecture, okay, which is four center method. Okay, it's also important for exam point of view, okay, in 3 to 4 marks. Okay, so first we know that four center method is mainly used for drawing the ellipse. Okay, whenever circle is given in the question in front view or top view, okay, we need to draw ellipse instead of circle. Okay, because it's look as a circle as ellipse, circle is looks as a ellipse. Okay, so we need to draw the ellipse for the circle. Okay, for that we use the four center method. Okay, method is simple. Okay, first we make one box. Okay, circle may be given in front view, top view or side view. Okay, कोई भी साइड पे आपको दिया गया हो, फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग दी box. Okay, and size of the box, length of the box is equal to diameter of the circle. आपको जो भी सर्कल दिया गया है उसका जितना भी डायमीटर है, ओके, इतना लेके आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है. I draw the ellipse for the top view. ओके, ये बॉक्स बना लिया है. इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये आपको ध्यान रखना है, ये जो लेंथ ही है बॉक्स की, जो आपको सर्कल है उसका जितना भी डायमीटर है, ओके, उतनी आपको लेंथ लेनी है. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप, ओके, मेक अ बॉक्स. आफ्टर दैट, ओके, आइडेंटिफाई द माइनर डायगोनल. ओके, इसमें से छोटा वाला डायगोनल है, एक तो ये वाला डायगोनल और एक ये, तो ये हुआ. फोर सेंटर मेथड है, इसका मतलब कि हमें फोर सेंटर फाइंड करने हैं फॉर ड्रॉइंग दी आर्क. ओके, आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें चार सेंटर फाइंड करने हैं. तो दो सेंटर तो ये जो माइनर डायगोनल है उसका एंड पॉइंट हो गया. ओके, अब बाकी के फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दी साइड्स. ओके, ये हो गया. नाउ कनेक्ट दिस पॉइंट विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स. ओके, तो इसके मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है. सिमिलरली ये पॉइंट है, उसकी अपोजिट साइड है, उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करना है. Okay, so intersection of these two lines give me the another two center. Okay, so here I have four center for drawing the ellipse. Okay, that's why its name is four center. Okay, by taking this different point as a center, we are going to draw four arc. Okay, I'm starting from this point. Okay, I give the name A, B, C and D. Okay, I'm starting with point A. Take A as a center and radius equal to this much or this much. Okay, आप ये radius ले सकते हो या ये radius ले सकते हो, ये वाली radius. Okay, आपका center यहाँ पे आएगा, पेंसिल यहाँ पे, ये एक मेजर आर्क हो गई. Okay, चलो now I taking B as a center. B को सेंटर लेना है और इतनी रेडियस या फिर इतनी रेडियस ले सकते हो. Okay, यहाँ पे आपका सेंटर आएगा, यहाँ पे पेंसिल आएगी. This one is another major axis. Okay, these two axis is known as a major axis. Okay, now I take C as a center और radius equal to this much or this much. Okay, आपका सेंटर यहाँ पे आएगा, पेंसिल यहाँ पे. This known as a minor axis. Sorry, arc, minor arc. Okay, now I take D as a center, this much as a radius or this much as a radius. I draw another arc. Okay, so this one is second minor arc. Okay, so in this way I complete the ellipse. Okay, ये तो हो गया. चलो, लेकिन कहीं पे अगर मुझे फुल सर्कल नहीं दिया गया है, ओके, अगर देखते हैं यहाँ पे, ओके, ऐसा कोई शेप दिया गया, सेमी सर्कल दिया गया. ओके, इसकी लेंथ ये मुझे दिया गया है 50 mm, इसका डायमीटर. ओके, आई नीड टू ड्रॉ दिस सेमी सर्कल. ओके, इट्स आल्सो लुक एज अ ellipse but half ellipse. ओके, मेथड इज सेम. ओके, फर्स्ट आई मेक वन बॉक्स एट हियर. ओके, ये फ्रंट व्यू में दिया गया हो, चलो फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते हैं. फ्रंट व्यू के लिए लेंथ और हाइट, ओके, यहाँ पे मैं लेंथ ले लेता हूँ 50 mm की और यहाँ पे हाइट 50 mm की. ओके, ये बॉक्स बना लिया. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, मेक अ बॉक्स. ओके, ये सारी हाइट की लाइन वर्टिकल और लेंथ की लाइन है एट एंगल ऑफ 30. समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप बॉक्स बना लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये बॉक्स बना लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द माइनर एक्सिस. ये हो गया माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ, सॉरी माइनर
डायगोनल। ओके, इसकी लेंथ कम है इसके कंपेयर में, तो ये हो गया, ये 2 सेंटर हो गए 4 सेंटर में से। ओके, मेथड इज सेम। नेक्स्ट स्टेप फाइंड द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। ओके, उसके बाद ये पॉइंट है उसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, ये पॉइंट को इसके साथ, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के साथ। ओके, सो आई गेट 4 सेंटर एट हियर। ये कंप्लीट हो गया, बट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओनली हाफ सर्कल, नॉट फुल सर्कल। यहाँ पे मुझे सिर्फ हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, फुल सर्कल नहीं ड्रॉ करना है। ओके, देखते हैं कहां पे, ये साइड पे सर्कल है, तो मैं फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर। ओके, एंड ड्रॉ वन आर्क एट हियर। समझ में आ रहा है? कौन सी साइड पे आपको ड्रॉ करना है वो ध्यान में रखना है। ओके, इस तरफ है सेमी सर्कल, आई टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ वन आर्क एट हियर। ओके, अगर मैं ये पॉइंट को ले लूंगा, ओके, तो आर्क कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट को लूंगा तो यहां पे आएगी, वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं ये पॉइंट को लू एज अ सेंटर और इसको रेडियस, नाउ इट्स कंप्लीट। ओके, ओके, तो मेथड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल इलिप्स नहीं बनाना है, सिर्फ हाफ इलिप्स बनाना है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? मेथड तो सेम ही है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी तरफ बनाना है, फिर ऐसे आपको बनाना। ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ही आएगी। ओके, वर्टिकल लाइन है इसलिए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगी। ओके, उसको 30 पे इंक्लाइन नहीं करना है। ओके, चलो, ये जब प्रॉब्लम आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड सेम ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, इसीलिए मैं आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ फुल इलिप्स ड्रॉ करने की जगह पे हमें सिर्फ हाफ ड्रॉ करना। ओके, नाउ जस्ट टेल मी द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। Okay, here top view and front view is given. Okay, this is the front view and this is the top view. Height is 60 mm, diameter is 40 mm. Just tell me what the shape of this object. कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये टॉप व्यू है और ये उसका फ्रंट व्यू। सिलेंडर। वेरी गुड, सिलेंडर। ओके, कोई भी सिलेंडर कर्व सरफेस, एज आई टोल्ड यू, एनी कर्व सरफेस और इंक्लाइन सरफेस इज लुक एज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये सिलेंडर होगा, लेकिन आप सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। सिलेंडर है इसीलिए आप उसको टॉप में से देखोगे। ओके, तो क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? एक सर्कल यहाँ पे होगा और एक सर्कल यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टॉप में एक सर्कल होगा और नीचे एक सर्कल होगा बॉटम में। ओके, और उसके बीच में ये कर्व सरफेस होगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो सर्कल टॉप व्यू में दिया गया है, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे बॉटम में, बेस में है। इसका मतलब वी आर गोइंग टू ड्रॉ 2 सर्कल, वन एट टॉप एंड वन एट बॉटम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे, एक टॉप में और एक बॉटम में। ओके, नाउ इन दिस केस हाउ यू कैन ड्रॉ। ओके, क्योंकि हमें 2 सिमिलर बनाने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप स्टार्ट विद ड्रॉ। अभी सिर्फ आपको देखना है, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। ओके, आई एम स्टार्टिंग प्रॉब्लम बाय ड्रॉइंग दी 2 लाइन एट एंगल ऑफ 30। ओके, नाउ हियर फॉर ड्रॉइंग दी सर्कल एट दी बॉटम। ओके, यहाँ पे बॉटम पे एक सर्कल बनाना है मुझे। ओके, तो उसके लिए सर्कल बनाने के लिए, सॉरी इलिप्स बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप मेकिंग दी बॉक्स। ओके, एंड लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है? 40. Okay, so I make one box at here with 40 mm as a length. समझ में आ रहा है ना? Okay, so first I make one box at here by taking 40 mm as a length. Okay, ये length कितनी है? 40 mm. Okay, now next step. Okay, next step क्या आएगा? Identify the minor diagonal. हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ये भी हो गया। अब इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, ये इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो हियर आई गेट ऑल माय 4 सेंटर्स। अब मैं नंबर नहीं दूंगा। ओके, इसको सेंटर लेना है, इतनी रेडियस आएगी, तो एक सर्कल यहाँ पे हो गया, आर्क सॉरी,
इसको सेंटर लेना है तो रेडियस इतनी आएगी, यहाँ पे एक आर्क हो गया। नाउ आई टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर, सो आई गेट वन आर्क एट हियर, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, सो आई गेट वन आर्क एट हियर। ओके, चलो, तो इसका मतलब ये बॉटम वाला सर्कल है। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो अभी मैंने सिर्फ इतना कंप्लीट किया, समझ में आ रहा है? नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी अनदर सर्कल, ओके, एट दी टॉप। ओके, टॉप पे ड्रॉ करना होगा, सेम साइज सेम ही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट मेजर करनी पड़ेगी। ओके, सेम अगर यहाँ पे भी मुझे इलिप्स बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, मेक वन बॉक्स, ओके, विथ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ दी सर्कल। एक बॉक्स बनाना है कि जिसका लेंथ कितनी आएगी, डायमीटर जितनी। स्टेप जैसे हमने यही बनाया वैसा ही ऊपर बनाना है, लेकिन ये दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जितनी ये सिलेंडर की हाइट है उतना। ओके, सिलेंडर की हाइट दी गई है कितनी, 60 mm। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स बनाया है उसके पैरेलल 60 mm के हाइट पे मुझे दूसरा बॉक्स बनाना है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है उसके 4 पॉइंट है। ओके, आई एम सिंपली टेकिंग द हाइट ऑफ 60 mm फ्रॉम ऑल दीज 4 पॉइंट्स। ये सारे जो 4 पॉइंट है उसमें से मैं हाइट कितनी ले लूंगा, 60, क्योंकि दूसरा वाला जो बॉक्स बनाना है वो पैरेलल है इससे, और उसकी हाइट कितनी है, 60 mm। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 60 mm। ये हो गया, नाउ यू सिंपली कनेक्ट। ओके, अब यहाँ पे जो हिडन पार्ट है लाइन वो मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये आइसोमेट्रिक का ये एक एडवांटेज है, जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ओके, नाउ स्टेप्स आर सिमिलर, आइडेंटिफाई द माइनर एक्सिस डायगोनल, सॉरी, ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द मिड पॉइंट। ओके, कनेक्ट दिस पॉइंट विद द टू मिड पॉइंट। आई थिंक अब तो आपको स्टेप याद रह गए होंगे। ओके, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। आप फेयर नहीं, लेकिन आप रफ में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको स्टेप याद रहे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे रफ ही ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसे अगर 2-3 बार करोगे तो आपको सारे स्टेप याद रह जाएंगे। ओके, नाउ आई टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्केट हियर, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्केट हियर, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्केट हियर, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, ड्रॉ वन आर्केट हियर। ओके, तो ये टॉप का हो गया और ये बॉटम का। नाउ जस्ट सिंपली ड्रॉ वर्टिकल लाइन। Okay, so in this way I complete my cylinder. Okay, isometric view for the cylinder. अब इसमें से अगर मुझे ये रिमूव करना है तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं। ओके, नाउ इट्स लुक ओके। अब आपको दिखेगा कंप्लीट सिलेंडर के जैसा। इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखो तो ऐसा दिखेगा, और टॉप व्यू देखो तो सर्कल दिखेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, ये मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड में क्या करना है, ये मेथड एग्जैक्ट आपको शेप मिलेगा। अब दूसरी मेथड है वो थोड़ी अप्रोक्सीमेट है। ओके, आपको एग्जैक्ट शेप नहीं मिलेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। पहले ये मेथड समझ में आ गई, पहले ये नीचे बनाया फिर उसका बॉक्स हमने ऊपर, पहले आप ऊपर बनाओ फिर नीचे बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक बॉक्स बनाना है, फिर जितनी हाइट है उतनी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उतनी हाइट की चारों पॉइंट में, तो नीचे भी बॉक्स बन जाएगा। ओके, ये एक मेथड है। ओके, दूसरी मेथड है वो, उसमें क्या है, आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा। मींस आपकी एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी, आंसर तो आपका आ जाएगा लेकिन एक्यूरेसी जितनी हमने ये मेथड यूज की है उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपके पास टाइम कम हो, ओके, तब आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ओके, जब भी आपके पास टाइम थोड़ा कम हो और आप वो मेथड नीचे वाला क्या बॉक्स नहीं बना सकते, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। इट इज द अप्रोक्सीमेटर। ओके, उसमें क्या करना है आपको, ओके, आई एम सिलेक्टिंग 4 to 5 9 6 to 7 point on this arc और इलिप्स। ओके, यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट ले लूंगा। कितने पॉइंट लेने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा पॉइंट लोगे आप उतने आपको ज्यादा रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे। ओके, नाउ स्टेप इज वेरी सिंपल। ओके, हियर height is 60 mm, height is 60 mm, it means I have one another ellipse at bottom, okay, with the distance of 60 mm। समझ में आ रहा है? ऐसा जो इलिप्स है वैसा ही नीचे भी है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 है। दोनों इलिप्स एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, और
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 mm. ओके, सो आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ वन लाइन, वर्टिकल लाइन with 60 mm length at here from first point. Okay, so I get one point at here. Okay, now I draw another line with 60 mm from second point, so I get another point at here. Okay, now I draw third line with 60 mm. यहाँ पे आगे ये आपको लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, आप लाइन नहीं ड्रॉ करो, सिंपली यहाँ पे पॉइंट मेजर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सभी लाइन है उसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए 60 mm आनी चाहिए। ये हो गया, और ये जो एंड वाला पॉइंट है वहां से भी एक लेनी है। ओके, दो एंड पॉइंट के, ये दो एंड पॉइंट है जहां से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वो पॉइंट तो ले ही लेने हैं, तभी आपको आइडिया आएगा कहां पे एंड करना है। ओके, सो हियर आई गेट 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने यहाँ पे जितने पॉइंट लिए होंगे उतने पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ जस्ट सिंपली कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट। ओके, और ये वर्टिकल लाइन। ओके, सो इन दिस वे you can also draw the cylinder. ओके, वो मेथड से फर्स्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसका यहाँ पे जो कर्व है, ओके, अगर आपको लेंथ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ये आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो इट्स हैव आल्सो सम लिमिटेशन, बट यू कैन यूज व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम। अगर आपके पास टाइम कम हो तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ओके, आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए। क्लियर है? ओके, तब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिलेंडर ही ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर सिलेंडर हो तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पहले ये टॉप का बना दो और फिर बाद में नीचे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं तो बॉक्स बना के करने वाले हो। ओके, ऐसा नहीं कि पहले बॉटम करना है फिर ही टॉप, अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आ गया ना समझ में? तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, everyone look the problem number 4, okay, in sheet number 8. Okay, here as I told you there's mistake in question. Okay, by mistake in question write that front view and left hand side, but actually front view and top view is given. Okay, जो फिगर है उसमें मेंशन किया है कि ये एलिवेशन है और ये प्लेन है। ओके, आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन चल रहा है, इसीलिए आपको आई थिंक आइडिया होगा कि फ्रंट व्यू को ही हम एलिवेशन बोलते हैं और टॉप व्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ओके, आई ऑलरेडी अपलोडेड 5 वीडियोस, ओके, ऑन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ओके, तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो देख लेना। 5 वीडियो मींस अप्रोक्सीमेट 9 to 10 प्रॉब्लम्स। ओके, उसमें सॉल्व की है, लेकिन वो आप सभी नहीं देखो, लेकिन इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर आपको देखना है, नहीं देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तभी बाकी के प्रॉब्लम में समझ में आएगा, क्योंकि आई थिंक मेरी मेथड अलग है और हार्डीवाल सर जो पढ़ा रहे हैं उसकी मेथड अलग है। ओके, तो इसीलिए अगर आपको प्रॉब्लम देखने है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो देखना, बाद में ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, अदरवाइज यू नो नीड टू वॉच एनी वीडियो। ओके, इंट्रोडक्शन का वीडियो है वही 40 मिनट का है, बाकी के तो सारे 20 मिनट्स के ही है वीडियो। ओके, लेकिन वो 40 मिनट्स का वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, वो अगर आप देखो तभी बाकी प्रॉब्लम में समझ में आएगा। ओके, चलो फिर से हम आइसोमेट्रिक पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज गिवन, जस्ट इमेजिन द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको माइंड में इमेजिन करना है कि ये कैसा दिखेगा। ओके, अगर एक बार आप इमेजिन कर लो फिर बाद में ही आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ करते करते आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ओके, इसीलिए आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है पहले से, बाद में हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एज आई टोल्ड यू, इफ प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट पार्ट। ओके, तो अगर आप देखो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है प्रॉब्लम, ओके, डिफिकल्टी आ रही है, देन डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू 3 to 4 पार्ट्स। कौन से 3 to 4 पार्ट्स होगी? मैं फ्रंट व्यू को डिवाइड करता हूं। ओके, पहले तो ये देखो बॉटम में बेस है। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया, ये क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो ये एक रेक्टेंगल बेस दिख रहा है, टॉप व्यू में देखो टॉप व्यू में भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इट मींस फर्स्ट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल बेस। ओके, अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया सब में बेस क्रिएट किया, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बेस क्रिएट करना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज रेक्टेंगल बेस। सेकंड, यहाँ पे देखो it's a rectangle. Okay, but as I told you, whenever rectangle is given, okay, verify it with the another view. Okay, because we seen the rectangle as a rectangle, inclined surface as a rectangle, and curved surface as a rectangle. Okay, अगर inclined surface होगी, curved surface होगी या फिर rectangle होगा, सभी के लिए हमें rectangle ही दिखेगा। इसलिए हमें जब भी rectangle दिया होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दूसरे व्यू से कि क्या वो rectangle ही है, inclined surface है या फिर curved surface है।
ओके यहाँ पे ये अगर आपको रेक्टेंगल, ये सेकंड पार्ट कह देता हूं मैं, ओके ये जो रेक्टेंगल है अगर आप उसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू में क्या है, सर्कल दिया गया है, इट मींस इट्स अ सिलेंडर। ओके हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है और टॉप व्यू में उसके लिए क्या है, सर्कल है, इट मींस इट्स अ सिलेंडर। ओके और यहाँ पे देखो दो सर्कल दिए गए हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, इट मींस इट्स अ होलो सिलेंडर। ये क्या है, होलो सिलेंडर है। ओके वो हमने आगे वाला देखा तो वो सॉलिड था, ओके कंप्लीटली फील्ड था, लेकिन यहाँ में क्या है, बीच में होल दिया गया, ये होलो सिलेंडर। ओके सो सेकंड पार्ट इज अ सिलेंडर, फर्स्ट पार्ट इज रेक्टेंगल बेस, सेकंड पार्ट इज सिलेंडर। नाउ फॉर दिस पार्ट, ओके यहाँ पे देखो ये इंक्लाइन सरफेस दी गई है, ओके और अगर आप टॉप व्यू में देखो तो ये वाली सरफेस, इट मींस इट्स अ रिब। ओके हमने ऑर्थोग्राफिक्स के प्रॉब्लम में दिया था, देखा था सॉरी। ओके तो ये क्या है, रिब है, ये जो इंक्लाइन सरफेस है वो क्या है, रिब है। ओके रिब इज यूज सपोर्ट ओनली। ओके रिब जब भी कहूं तो आपको याद आना चाहिए कि जब भी हम कट करते सेक्शन व्यू में, ओके तो रिब के लिए सेक्शनल लाइन नहीं ड्रॉ करते, ओके बिकॉज इट्स अ वेरी थीन पार्ट। ओके चलो तो ये हो गया तीन पार्ट्स में, फर्स्ट रेक्टेंगल स्लैब, सेकंड सिलेंडर और थर्ड वाला ये रिब। ओके सो वी स्टार्ट विद द रेक्टेंगल बेस। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस रेक्टेंगल बेस। ओके फर्स्ट क्रिएट वन रेक्टेंगल बेस। यहाँ पे डायमेंशन देख लेते हैं, विथ लेंथ इक्वल टू 115। ओके लेंथ कितनी है 115, हाइट इक्वल टू 15 और विड्थ कितनी दी गई है 60। समझ में आ रहा है? ओके सो फर्स्ट क्रिएट वन रेक्टेंगल बेस बाय टेकिंग लेंथ इक्वल टू 115, width equal to 60 and height equal to 50। हम सिर्फ इतना पार्ट पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करो। ओके एनी प्रॉब्लम, स्टार्ट विथ ड्रॉइंग दी लाइन एट एंगल ऑफ 30। यहाँ पे 115 की लाइन लेनी है और यहाँ पे 60। ओके ये एंगल कितना है 30। स्टार्ट करो। ओके ये रेक्टेंगल बन गया है। अब बेस बनाने के आप दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो फिर हाइट ऊपर ले सकते हो, या तो फिर जैसे मैंने आपको बताया नीचे ले सकते हो। ओके ऊपर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हिडन पार्ट होगा वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। नहीं रिमूव करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। ओके सो आई सजेस्टेड दैट रिमूव दैट एक्स्ट्रा लाइन। चलो ओके ये लेंथ 115 है और ये 60। Okay, I am taking the height at below side, height of 15। ओके ये सारी लाइन कौन सी आएगी, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ओके सो फर्स्ट स्प्लिट द बेस। ओके पहले बेस कंप्लीट करो। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके फर्स्ट कंप्लीट अप टू दिस। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी सिलेंडर।
ओके, जिसका हो गया हो वो सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फर्स्ट कंप्लीट अप टू दी रेक्टेंगल स्लैब और बेस, सॉरी। ओके, अब तो ये टर्म हमने सारे प्रॉब्लम ने किए हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आ जाना चाहिए। ओके, एंड व्हेनेवर यू कंप्लीट जस्ट सेंड अ मैसेज इन चैट बॉक्स so I get idea. Okay, first make the rectangle box, and whenever rectangle slab, sorry, and whenever you complete, just send a message in chat box. Very good. Okay, very good. Now let's move for the circle or cylinder. Okay, cylinder के लिए देखो, जैसे मैंने बताया, अब second part, it means for this part. Okay, here for cylinder we have one circle at here at bottom base and one at here top base. Okay, so first we are going for the bottom base circle. Okay, और सर्कल के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? फर्स्ट हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, विथ अ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बाहर वाला सर्कल है, उसके लिए ड्रॉ करते हैं। ओके, बाहर वाले सर्कल के लिए डायमीटर कितना है? 50। ओके, तो यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है 50 का, लेकिन कहाँ पे बनाना है वो ध्यान में रखना है हमें। ओके, तो उसके लिए हम ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, ये सेंटर लाइन। ओके, देखो सेंटर लाइन यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया है, कितना है? 35। पहले देख लो, बाद में ड्रॉ करना। पहले ये बॉक्स कैसे बनाना है वो देख लो, बाद में ड्रॉ करना। यहाँ से डिस्टेंस कितना मेजर करना है? 35। ये लाइन हो गई। ओके, ये डिस्टेंस कितना है? 35। अब यहाँ पे 60 है, तो कितना डिस्टेंस आएगा? 30। ओके, तो ये सेंटर लाइन हो गई। ओके, ये दो सेंटर लाइन। ओके, यहाँ पे सेंटर आएगा सर्कल का। चलो, अब बॉक्स हमें कितने का बनाना है? 50 का बनाना है। ओके, ये बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ। ओके, फॉर ड्रॉइंग दिस सर्कल, लार्जर सर्कल, इट्स हैव डायमीटर 50 mm. ओके, सो वी नीड टू ड्रॉ दी बॉक्स विथ लेंथ इक्वल टू 50 mm. ओके, तो ये जो सेंटर है, ओके, यहाँ से टोटल 50 mm है, ये सेंटर पॉइंट है, इसलिए इस तरफ 25, इस तरफ 25, इस तरफ 25, यह 25, यह 25, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25। ओके, ये चार पॉइंट मैंने फाइन कर लिए, टोटल लेंथ 50 हो जाएगी, ये भी 50 हो जाएगी। ओके, यहाँ सेंटर से 25, 25, 25, 25, तो टोटल 50 हो गया। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ दी पैरेलल लाइन। ये जो पॉइंट है उसमें से ये लाइन है, उसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। लेंथ अभी मैंने मेजर नहीं की है, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अगर आप मेजर करना चाहो तो यहाँ से 25, यहाँ से 25। ओके, अब ये लाइन है, उसको, ये लाइन है उसके पैरेलल ये पॉइंट में से ड्रॉ करनी है।
ओके, ये भी इसकी लाइन भी कितनी होगी, 50 होगी। अब ये पॉइंट है, ये लाइन है, उसके पैरेलल इसमें से ड्रॉ करना है, तो ये हो गया। ओके, अब ये पॉइंट है, उसमें से पैरेलल लाइन। ओके, तो इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो। ओके, चलो बॉक्स बनाओ पहले, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखो। ओके, इसको आ गया है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे हमने पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, ये 30 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे 35 डिस्टेंस ये दिया गया है, यहाँ पे 35 ये लाइन के लिए। ओके, तो यहाँ पे 35 ले लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और यहाँ पे 30 लेके ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये सेंटर मिल गया। अब हमें बॉक्स बनाना है कितने का, 50 का, क्योंकि ये सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है, 50। So I measure 25 on this side, 25 on this side. So I get 1 point at here, 1 point at here. Okay, now I take 25 on this side and 25 on this side. अब ये चारों पॉइंट है, उसमें से इसके लिए इसमें से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट के लिए इसमें इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट के लिए ये लाइन ले लो या ये लाइन ले लो, उसके या सेंटर लाइन ले लो, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट के लिए ये वाली साइड है, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो हियर आई गेट माय रेक्टेंगल बॉक्स। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, और जिसको अब आगे समझ में आ रहा है वो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अब सिंपल आपको 4 सेंटर मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। चलो 4 सेंटर मेथड अप्लाई करना, पहले ये बॉक्स बना लो। ओके, 4 सेंटर मेथड अप्लाई करते हैं। चलो बॉक्स बना लो पहले। ओके, जिसको 4 सेंटर मेथड याद आ गई है, याद आ रहा है, सॉरी याद है, उसको वो ड्रॉ कर सकते हो। जिसको समझ में आ गई है 4 सेंटर मेथड, वो ड्रॉ कर सकते हो अपने आप से, और जिसको नहीं समझ में आ रही है वो मेरे साथ ड्रॉ करो। चलो ओके, पहले तो माइनर डायगोनल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये है, इसकी रेंज ज्यादा है तो इजीली आइडिया आ जाएगा। 2 सेंटर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, अब ये 2 सेंटर को यूज करना है। इसकी मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए। ओके, तो ये पॉइंट है, उसको मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो ये बाकी के 2 सेंटर यहाँ पे मिल गए। ओके, तो अब सिंपल ड्रॉ करते हैं सर्कल। फर्स्ट यूज दिस पॉइंट, this arc, this point, one arc at here, this point। आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले मेजर आर्क ही ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट को सेंटर लेना है तो रेडियस इतनी आएगी।
चलो यहाँ तक कंप्लीट करो पहले। ओके, और जिसका हो जाए वो ऊपर एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हाइट कितनी दी गई है? 40 mm। ओके, तो 40 mm, ये सारे जो पॉइंट है बॉक्स के, वो सभी चारों पॉइंट में से 40 mm की हाइट लेके ऊपर एक और बॉक्स बनाओ और उसमें 4 सेंटर मेथड अप्लाई करो। ओके, सर्कल को अभी डार्क नहीं करना है क्योंकि हमें पता नहीं इसमें से कितना पार्ट दिखेगा। ओके, नाउ फॉर ड्रॉइंग दी अनदर सर्कल। ओके, अब यह देखो, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये ऊपर वाला यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 40 mm। तो यह हमने जैसा किया वही ऊपर करना है, और दोनों का डिस्टेंस कितना है? 40 mm। ओके, सो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये बॉक्स है, उसके पैरेलल ही ऊपर भी एक बॉक्स है। ओके, और उसकी हाइट कितनी है? 40 mm। सो आई ड्रॉ वन बॉक्स एट हाइट ऑफ 40 mm फ्रॉम ऑल दी 4 पॉइंट्स। ये हाइट कितनी लेनी है? 40 mm। ओके, फिर उसके बाद सिर्फ सिंपल उसको कनेक्ट करना है। ओके, ये हाइट कितनी है? 40 mm। ओके, मेथड सेम ही है। ओके, ये दो माइनर एक्सिस के पॉइंट हो गए। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है, 25 25 25 25। ओके, ये बाकी के दो हो गए। ये इसको सेंटर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फिर से बताता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो बॉक्स है उसका सिमिलर बॉक्स हमें ऊपर बने, इसके पैरेलल। ये सारे ये बॉक्स के 4 पॉइंट है, उसमें से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो सभी से पैरेलल हो गए। और उसकी हाइट कितनी लेनी है हमें? 40, क्योंकि हाइट दी गई है 40। ओके, जो सभी से पैरेलल हो गए। और उसकी हाइट कितनी लेनी है हमें? 40, क्योंकि हाइट दी गई है 40 mm। ओके, उसके बाद सिंपल उसे कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये बॉक्स मिल गया हमें। अब क्या करना है, उसका माइनर डायगोनल सिलेक्ट करना है। ये हो गया। अब उसके मिड पॉइंट,
चलो यहाँ तक कंप्लीट करो। ओके, तो ये सिलेंडर की टॉप और बॉटम दोनों बेस क्रिएट हो गए हैं। अब सिर्फ यहाँ से एंड पॉइंट है, वहां से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ये बाहर का जो सर्कल है, सिलेंडर है, वो हमने कंप्लीट किया, लेकिन अभी ये अंदर का सिलेंडर बाकी है, क्योंकि ये होलो सिलेंडर है। अगर मैं इतना ही रखूंगा तो ये सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ओके, लेकिन एक्चुअली हमें दिया क्या गया है, होलो सिलेंडर दिया गया है। इसका मतलब कि इसके अंदर मुझे और एक इलिप्स ड्रॉ करना है। ये बाहर वाले सर्कल के लिए मैंने एक इलिप्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, अब इसके अंदर दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। इट मीन्स यहाँ मुझे एक और इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है? ओके, सो फॉर दैट आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दी लाइंस इनसाइड दी इलिप्स। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं सारी लाइन को रिमूव कर देता हूं यहाँ पे। चलो, अब क्या करना है, इसके अंदर ही मुझे एक और सर्कल बनाना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलिप्स बनाना है, सॉरी। तो उसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, तो ये जो सर्कल है उसके डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, 30 है। यहाँ पे देखो, ये बॉक्स है। ओके, अब अंदर ये ऊपर ध्यान देख लो, ऊपर ध्यान से देख लो, बाद में ड्रॉ करना कि अंदर बॉक्स कैसे बनाना है वो देख लो। ओके, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, 50। ओके, और अंदर हमें बॉक्स बनाना है, वो कितने का बनाना है, 30 का बनाना है। तो लेंथ कितनी बचेगी, 20 बचेगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये 50 की लेंथ है, यहाँ पे 10 mm लेफ्ट करता हूँ और यहाँ पे 10 mm। ओके, डिस्टेंस, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 mm लेफ्ट करते हैं और यहाँ पे। ओके, सो टोटल डिस्टेंस इज 30 mm। यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल ये जो लाइन है उसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे ये पॉइंट में से ये लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ओके, ये लाइन है उसके पैरेलल ये पॉइंट में, पॉइंट से लाइन। ये डिस्टेंस कितना हमने लेफ्ट किया है, 10 mm, 10 mm। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 30 है। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये पॉइंट है, ये लाइन के पैरेलल इसमें से। ओके, तो ये देखो, अब अंदर जो ये बॉक्स है ये कितने का हो गया है, 30 का बॉक्स हो गया है। समझ में आ रहा है? इसकी लेंथ कितनी है, 30। आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर रहे हो इसलिए आपका एग्जैक्ट आएगा, मेरा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर हो गया रेक्टेंगल। अब इसके अंदर मुझे कौन सी मेथड यूज करनी है, रेक्टेंगल नहीं, बॉक्स हो गया, इसके अंदर मुझे 4 सेंटर मेथड यूज करनी है। ओके, तो पहले हम उसका माइनर डायगोनल सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मेथड तो आपको पता है। ओके, इसको मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, इसको मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो आई गेट अनदर 2 पॉइंट एट हियर। ओके, first I taking this point as a center, draw one arc at here. This point as a center, draw one arc at here. Okay, now taking this point as a center, draw one arc at here. Now taking this point as a center, draw one arc at here. Okay, मेथड तो सिंपल है, लेकिन बॉक्स कैसे बनाना है वो आपको ध्यान से देखना है। ओके, सो इन दिस वे आई ड्रॉ दी होलो सिलेंडर। समझ में आ गया है? चलो ड्रॉ करो। नहीं समझ में आ रहा है वो, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिसको समझ में आ गया है वो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं समझ में आया वो फिर से ऊपर ध्यान दो। चलो देखो यहाँ पे। ओके, हमारे जो बाहर वाला बॉक्स है वो 50 बाई 50 का है। हमें अंदर बॉक्स कितने का बनाना है, 30 का, क्योंकि जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 30 है। टोटल 50 mm डिस्टेंस है, तो मैं इस तरफ से 10 mm छोड़ देता हूँ और इस तरफ से 10 mm। ये 10 10 20 माइनस हो गए, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 30। ये लेंथ कितने की, 30 हो गई। यहाँ पे फिर से 10 mm, यहाँ से 10 mm। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 30। यहाँ पे 10 mm यहाँ से, और यहाँ से 10 mm। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, अब ये जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किए है उसमें से ये लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये पॉइंट है, इस ये लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो अंदर हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया है। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से लाइन रिमूव कर देता हूं। ओके, दिख रहा है अंडर बॉक्स।
यहाँ पे हमें फिर से फोर्थ सेंटर मेथड यूज करनी है। ओके, ये दो पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये माइनर डायगोनल के हैं। अब बाकी के पॉइंट के लिए, बाकी के साइड के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये हो गया। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, सामने के मिड पॉइंट के साथ, ये को सामने की साइड के मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा और यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा। ओके, आई एम यूजिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर। इसको सेंटर लेना है और इतनी रेडियस लेनी है। इसको सेंटर लेना है और इतनी रेडियस लेनी है। ये पॉइंट को सेंटर लेना है और इतनी रेडियस लेनी है। ये पॉइंट को सेंटर और इतनी रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आपका होलो सिलेंडर है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि हमने नीचे क्यों नहीं बनाया होलो सिलेंडर के लिए। ओके, क्योंकि ये जो बाहर वाली सरफेस है उसके वजह से जो अंडर सर्कल है वो हमें नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने नीचे नहीं बनाया, यहाँ पे होलो सर्कल नहीं बनाया, क्योंकि ये तो हमें ऊपर से देखेंगे तो ये दिखता है। ओके, लेकिन जब ये यहाँ पे ये सरफेस आ जाएगी, ये सरफेस आ जाएगी, उसकी वजह से ये जो सर्कल है अंडर वाला इनर सरफेस वो मुझे नहीं दिखेगी। ओके, और ये जो सिलेंडर है, ओके सॉरी सर, इलिप्स से नीचे का वो भी कंप्लीट इलिप्स नहीं दिखेगा मुझे, सिर्फ ये आउटर सरफेस है वही दिखेगी, इतना पार्ट ही दिखेगा। ये जो ये येलो सरफेस है वो नहीं दिखेगी क्योंकि वो पीछे की ओर है, इसीलिए नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो इतना पार्ट मुझे दिखेगा। ओके, सो इन दिस वे आई कंप्लीट माय सेकंड पार्ट। ओके, अब थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं, एक बार देख लो बाद में फिर ड्रॉ करना, आप लोग बाद में ड्रॉ करना। चलो पहले इतना कंप्लीट करो, अब सिर्फ रिब वाला पार्ट बाकी है। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो। ओके, वेरी गुड। चलो ऊपर ध्यान दो, देख लो सभी, बाद में ड्रॉ करना जिसका बाकी है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? रीप ड्रॉ करनी है। रीप यहाँ सेंटर से है। ओके, अगर आप उसका टॉप व्यू देखो तो ये सेंटर लाइन है, यहाँ से रीप की थिकनेस कितनी दी गई है? ओके, रिप की थिकनेस 10 mm दी गई है। ओके, तो यहाँ पे ये थिकनेस 10 mm है। ओके, सेंटर लाइन से 5 mm अबव और 5 mm बिलो। ओके, तो यहाँ पे सेंटर लाइन है, ध्यान से देखो, बाद में ड्रॉ करना। यह है 10 mm की लेंथ लेनी, विड्थ लेनी है, तो 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ, तो ये टोटल 10 हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, उसका सेंटर पॉइंट हमने फाइंड किया था यहाँ पे। ओके, मैं ये अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये वाला सेंटर पॉइंट है। ओके, वहां से हमें 10 mm 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ लेना है, तो टोटल कितना हो गया? 10 mm हो गया है। नाउ आई जस्ट सिंपली कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट। ओके, और ये पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो यहां पे देखो, ये मैंने रिप तो ड्रॉ कर ली है, लेकिन यहां पे ये पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट भी निकल जाएगा। क्योंकि क्यों निकल जाएगा? देखो यहां से ये वाला जो पॉइंट है वहां से मुझे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, तभी ये रिप जैसा दिखेगा ना। ओके, तो ऐसे आएगा। ये जो रिप का पॉइंट है वहां से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ये यहाँ तक टच हो, वहां तक ये
बॉटम वाला जो रिप है उसको टच हो वहां तक, और यह जो पॉइंट मिलता है उसको रिप के ये एंड के साथ कनेक्ट करना है। ओके, अब आपका प्रॉब्लम कंप्लीट है। ओके, इसमें से अगर मैं एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट निकाल दूं तब आपको दिखेगा। ओके, ये रिप वाला समझ में आया? समझ में आ गया? वो ड्रॉ करो, बाकी को फिर से समझा रहा हूँ। ओके, यह जो सेंटर लाइन है, रिप की थिकनेस 10 mm है, तो 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लाइन थी। ओके, तो उसका मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था 25 पे, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, उसके 5 mm इस तरफ और 5 mm इस तरफ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये सेंटर लाइन है यहाँ पे, ये सेंटर वाली लाइन है दोनों। ओके, तो इसके 5 m, इसके 5 m, तो ये तरफ का जो पॉइंट है उसको ये तरफ इसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये लाइन मिल जाएगी। ये इस साइड का जो पॉइंट है उसको इस साइड के पॉइंट के साथ, तो ये लाइन मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है उसमें से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और फिर इसके साथ उसको कनेक्ट करना है। ओके, तभी ये रीप जैसा दिखेगा, और उसके पीछे का जो भी पार्ट हो वो आप रिमूव कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो आपका विजिबल मेन पार्ट है उसको आपको डार्क दिखाना पड़ेगा। चलो कंप्लीट करो, एंड व्हेनेवर यू कंप्लीट द होल प्रॉब्लम, ओके, देन जस्ट सेंड अ मैसेज इन चैट बॉक्स। कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तभी आपको मैसेज अब सेंड करना है चैट बॉक्स में।